name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most gracious and most merciful and kind to all. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And I hope you all be fine. आज हमने कुछ selected questions लिए हैं, short answer type questions, जो आपके competitive exams के लिए काफ़ी ज़्यादा important है. And I wish you pay your attention for understanding because they are gonna really help you in your future studies. तो इसमें से मैंने 5 क्वेश्चंस जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट से लिए है. सो all the questions are very important for you, especially for competitive examinations. So let us discuss the question number 1. That is, you have to mention the half-life period of carbon-14. What is the half-life period of carbon-14? Or for your kind information, I would like to mention here, carbon-14 is also called as a radioactive carbon and it is continuously formed in our environment. ये हमारे environment में continuously बनता है और carbon-14 को हम radioactive carbon कहते हैं. हमको mention करना है यहाँ पे कि इसकी जो half-life time है वो डिस्कस करना है, half-life type of carbon-14. So think over it. It's very important question and often asked in higher examination point of view. Yes, its half-life period is 5,568 years. 5,568 years is the exact answer of this question. Let's take the question number 2. That is, what is the transition zone between the two communities called as? दो communities के बीच में एक zone of transition होता है या transition zone होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को मेडिकल एंट्रेंस 2016 के पेपर ने डिस्कस किया है. I would like to repeat the question again. You have to mention the name of that very much zone which is in between the two communities, the transition zone between the two communities. Exactly right. That is called as the ecotone. काफ़ी ज़्यादा important question है, काफ़ी ज़्यादा 2-3 बार ये मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है. तो इसको कहते हैं ecotone. Ecotone is the transition zone between the two communities. Okay. Now discuss the question number next. Who proposed the biogenetic law? बायोजेनेटिक लॉ को किसने प्रपोज किया था? आपको उस साइंटिस्ट का नाम बोलना है जिसने बायोजेनेटिक लॉ को प्रपोज किया था. You have to mention the name of the scientist who gave the biogenetic law. Was the great scientist Haeckel. Haeckel था वो साइंटिस्ट जिसने बायोजेनेटिक लॉ दिया था. Haeckel. Okay. Who coined the term ecosystem? Who coined the term ecosystem? आपको साइंटिस्ट का नाम बोलना है जिसने टर्म इकोसिस्टम कॉइन की थी. तो मैंने अपने वीडियो के जो लेक्चर्स हैं उनमें आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा. तो इसका आंसर है A.G. Tinsley was the scientist who proposed the term ecosystem. Question number next. First life form on earth. जब हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे अभी इस अर्थ पे है. डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है. तो अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनिस्ट्स और अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट्स, वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे जो पहले प्रिवेल हुए इस अर्थ पे? तो इसका जो मल्टीपल चॉइस इस तरह भी दे सकता है एग्जामिनर, क्या ये BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी थे, कीमो ऑटोट्रॉप थे या कीमो हेटेरोट्रॉप थे या एल्गी थे या फंजे थे, या बहुत सारी ऑप्शंस इससे आ सकती है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यू हैव टू मेंशन द लाइफ फॉर्म दैट प्रिवेल्स फर्स्ट ऑन द अर्थ. सो इट्स आंसर इज
कीमोऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म थे जो इस अर्थ पे पहले सबसे पहले प्रिवेल जिन्होंने किया था इस अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to mention the name of a scientist who conducted the different experiments to predict the origin of life by using CH4 methane and ammonia and nitrogen and water। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इस्तेमाल इन एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस या बहुत सारी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जो मैंने मेंशन किया। आपको उस साइंटिस्ट का नाम बोलना है जिसने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर हाइड्रोजन और वाटर को इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो फिर उसने प्रेडिक्ट किया, वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि इस अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो किस तरह से हुई थी। तो उस साइंटिस्ट का नाम बोलना है, ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। द साइंटिस्ट वाज एस मिलर। एस मिलर एक वो साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और वो लाइफ ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उस साइंटिस्ट का नाम था एस मिलर। CH4 methane gas। CH4 methane gas is also called as methane gas को हम किस और नाम से जानते हैं? What is the methane gas also called as? CH4 it's a compound, prominent compound। methane सबने नाम सुना होगा, तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? that is the marshy gas। marshy gas methane gas को हम marshy gas भी कहते हैं। It's also a good objective। And for your kind information, methane is continuously formed in marshy areas। marshy areas में मैंग्रोव वेजिटेशन होती है और कंटिन्यूसली फॉर्म होता है, और ये एरिया हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ये वाले एरियाज जिनमें मीथेन गैस जो है कंटिन्यूसली फॉर्म होता है। एक और ऑब्जेक्टिव है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीसोजोइक एरा इज द गोल्डन पीरियड ऑफ व्हाट? जो मीसोजोइक एरा है, डिफरेंट जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे हमें बहुत सारे जो एराज है वो मिलते हैं, जैसे सीनोजिक एरा, पेलोजिक एरा, मीसोजिक एरा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ने डिस्कस किया है मीसोजिक एरा इज द गोल्डन पीरियड फॉर व्हाट? इनमें जो डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स थे, कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें डोमिनेंट थे? उन ऑर्गेनिजम्स में उन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ दैट वेरी मच ऑर्गेनिजम्स। वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे? as that was the reptiles। so Mesozoic era is called as a golden era of reptiles। lichens। lichen is the association between the fungal and algal partner। आपने इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया होगा। एल्गल जो एल्गल पार्टनर है किस तरह से वो फूड प्रिपेयर करता है, और फंगल पार्टनर जो है वो किस तरह से इसको इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच रखता है, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किस तरह से ग्रोथ करते हैं फिर। सो आपको बोलना है कि लाइकेंस आर सेंसिटिव टू विच गैस? कौन सा गैस है वो? you have to mention the name of the gas। lichens are sensitive to which gas? very very important objective। lichen जो काफी सेंसिटिव होते हैं उस गैस के, तो दैट इज SO2। सल्फर डाइऑक्साइड इज द गैस। तो आपको याद रखना है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस गैस से रिएक्शन करते हैं। और आपने अपने स्टडीज में पढ़ा भी होगा लाइकेंस उस एरिया में ग्रो नहीं करते हैं जो हाइपर पोल्यूटेड होता है, जो सेंसिटिव होता है एयर पोल्यूशन के हवाले से। अगर हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मेड्रास, इन एरियाज़ में ये लाइकेंस ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एयर पोल्यूटेंट्स लाइक SO2। You have to mention the name of air pollutant that cause the ओजोन लेयर डिप्लीशन। उस एयर पोल्यूटेंट का नाम बोलना है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन के हवाले से हमने 4 वीडियोस बनाए थे। आई होप कि आपने वो अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। तो इसका आंसर जो है दैट इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वो एयर पोल्यूटेंट है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं। नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विच गैस इज हार्मफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच गैस इज responsible
which cause the harmful effects of nitrogen fixation or biological nitrogen fixation. आपको उस गैस का नाम बोलना है जो नेगेटिव इफेक्ट देता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. यस, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस ये है जो इसको इफेक्ट करता है, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो सर्वाइव नहीं करते हैं, तो इनके लिए जो फिजिबल और फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर. Name the two most common pathogens found in polluted water. Very important question. Name the two common pathogens present in polluted water. Polluted water में कौन से दो pathogens होते हैं जो prominently present होते हैं इसमें? Number one is bacteria and number two is protozoans. Protozoans और bacteria काफ़ी ज़्यादा तादाद में, काफ़ी ज़्यादा concentration में polluted water में present होते हैं, और ये most इसके अलावा फंगल स्पोर्स या अलगल स्पोर्स या उसके कुछ कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो जो होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं. और अगर आप देखोगे भी जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है तो उनका जो कॉजेटिव एजेंट्स होता है वही होते हैं, या तो बैक्टीरिया होंगे या तो प्रोटोजोआस होंगे. सो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. नेम द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूज्ड एज द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. नेम द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. ये भी मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है. ये जो हम अभी लाइकन्स डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, तो आप अच्छे से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो वो ऑर्गेनिजम्स लाइकन्स है. इसका जो आंसर है लाइकन्स. ये लाइकन्स उस एरिया में नहीं ग्रो करते हैं जो पोल्यूटेड होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं, पोल्यूटेंट्स के सेंसिटिव होते हैं, और उस एरिया में ये ग्रो नहीं करते हैं. इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि हम इनकी वजह से पोल्यूशन की लेवल को इंडिकेट कर सकते हैं बायोलॉजिकली. और जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए भी रखूंगा. तो आई होप कि आप कमेंट्स में इसका आंसर अच्छे से दोगे. और ये भी एम्स का एंट्रेंस जो है उसने ये 2 बार रिपीट किया है. आप 2016 पेपर है इंडियन एक्सप्लोर स्टडी कर सकते हो, उससे ये आपको अच्छे से ये इसका आंसर मिलेगा. तो before discussing that very much question, that's homework for you people, I would like to share you last but one question with you. That is, what is the chemical formula for ozone? ओजोन जो हमने डिस्कस किया था उसको हम किस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O3, जो हमने बोला है ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है वो. तो ओजोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से. और लास्ट क्वेश्चन जो है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन. जो इकोसिस्टम की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नंबर वन ecological factors, number two availability of nutrients, number three consumers, number four photosynthetic capacity of plants. तो इन चार में आपको देखना है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड नहीं है. तो यू हैव टू मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई होप कि आपको ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हायर लेवल्स के लिए आपको इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए. सो keep blessed and keep working hard, and hard work is the key to success. Wish for your bright support. Allah Hafiz and take care.